Ladies and gentlemen, welcome to our new installment, Wrestle Square Explosion. You are going to get 100% professional wrestling action and 0% jacuzzi action, if you know what I mean. And tonight, we are going to have explosive action and, of course, our special guest referee would be Team Curfew member Maxim Risky. Whoa. Wait a minute. You think my soon-to-be three times champion Maxim Risky is going to be a referee in the match? I know what you're thinking. I cut your deal, I remember. But you know what? This is my ring, and I'm changing the rules a bit. But in order to keep my word, I'm gonna give you a new referee for the match. And here he is. So, there you go, Maniac. So, the Team Curfew is standing here, and it's just because of this man standing here, RJ, the ringmaster. And he know that Max Risky deserves the right spot in Russell Square, and it's as a wrestler, not as a referee. Wait a minute. Excuse-moi. Thing is that I first have to address this. You are having a title opportunity. Yes, that's tonight, and you have made the match. I have made the match, and I have a personal interest in our Intercontinental Champion, Skyler. You listen to me. The Team Curfew will be 3 times tag team champion. Just after, we will beat up your mystery tag team champion. You got me? Sorry to break it to you, Mr. Limit Breaker. You would be defending your Skytel tonight against a debutante. That's not fair. So there's no way I'm wrestling 2 matches tonight, and this title is more important to me than the tag team championship. Gotcha? Please understand this. I have to defend the prestige of Skydal. I mean, this is the most important thing to me right now. And I'm not just gonna put this title in jeopardy for a competitor I don't even know. So, I'm sorry, man, but I hope you understand. You mean your title is more than the family of Team Curfew? And this is what you mean to say? Where are you going? Come here. Trouble in paradise. You have to say something? You already trying to break our team. No, I'm not. The thing is, Tell me who will be the opponent. the opponent is Team Evolution. Evolution? What the hell is evolution? You have not seen them, you have not competed against them, but you will know that who the hell is Team Evolution tonight. If you have a partner, if you do not have a partner, I don't give a flying fuck. Basically, compete tonight or else you are also suspended for a week. You have guts to get in 2 matches, I promise you. Where have you disappeared? Okay, I think because as my name suggests, Maxim Risky, so I will put my life in the match to get the victory, and you will see the power of Maxim Risky. Just bring it on. Who the hell you want to bring? Maxim Risky is ready.
All right. It's on. It's on. Tonight, Maxim Risky is going in a handicap match, it seems, against Team Evolution. Tonight on Explosion. ये बहुत बहुत स्वागत है आपका देवी और दर्शकों। मैं गुराम मेरा सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं अभिषेक अनेजा एक्सप्लोजन में। और ये क्या हो रहा है अभिषेक जी? मेरे ख्याल ये लोग जीत गए शायद। कौन जीत कौन गया हार कौन गया कुछ समझ नहीं आया मुझे यहाँ पे। ये बट ये जो साइकोटिक क्लाउन्स मैं कहना चाहूँगा इन लोगों को यहाँ पे। हाँ जी। एंड ये हो क्या रहा है? इसे ये इस मैच से के पहले एक वार्तालाप हुई आरजे द रिंग मास्टर टीम कर्फ्यू के बीच, जिसमें ये मैच कंफर्म हुआ। ये हैंडीकैप मैच है और इसमें अगर मैक्सिम रिस्की जीतते हैं तो इनको आगे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन इनके पार्टनर होंगे कौन? जो इस वार्तालाप में जो घटनाएं घटी उसके बाद ये लगता नहीं है कि स्काइलर इनके साथ आगे शायद होंगे। जी हाँ, सो बेसिकली देखा जाए तो जी हाँ, तो बेसिकली देखा जाए तो मैक्सिम रिस्की हैज़ नो वन टू हैव विस्की, करेक्ट? एंड वी आर ऑलवेज फ्री एक्चुअली फॉर दिस। लेकिन गौरांग तो बहुत ही ज़्यादा। जी हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिम रिस्की ने साइड हेडलॉक में लगाया हुआ है एक क्लाउन को एक जोकर को। इनको हम पहचाने कैसे अभिषेक जी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, दोनों जैसे ही लग रहे हैं मुझे तो। आप ये जो अभी रिंग में हैं ये शायद ये थोड़े से बूढ़े लग रहे हैं, तो इनको आप बीजे कह सकते हैं। हाँ जी,
बूढ़े जोकर। ओह अच्छा, हाँ जी, बूढ़े जोकर एंड हाँ जी। वो जो दूसरे वाले उनको हम क्या बोलें? उन्हें जवान जोकर जे जनार्दन झाकड़। काफ़ी इनोवेटिव तरीके हैं आपके इनके नाम रखने के लिए। और चलिए एनीवेज, तो धन्यवाद। यहाँ पे मैक्सिम रिस्की लीड है मैच के एंड मैक्सिम रिस्की मिस करते हुए क्लोज लाइन जो बूढ़े जोकर। बीजे हाँ जी, बीजे। मैक्सिम रिस्की ने उठा लिया ऊपर। वाइट नॉइस। मैक्सिम रिस्की ने भले ही स्काइलर अभी नहीं है कहीं भी आसपास, लेकिन आज द रिंग मास्टर जरूर प्रेजेंट है रिंग साइड पे, तो एक एडवांटेज मोटिवेशन रहेगी उनको मेरे हिसाब से। लेकिन जे कहाँ है? वही मिचिनोकू ड्राइवर। जे डबल डाइविंग फुट स्टॉम्प जे के द्वारा, और ये पीठ का सत्यानाश करते हुए मैक्सिम रिस्की की जनार्दन झाकड़। मैक्सिम रिस्की चेस करते हुए खेल चलते हुए रिंग के बाहर हाँ कौन जी। पहले पकड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो जे हैं अभिषेक जी, दूसरे वाले जोकर जो है वो गायब भी हो चुके हैं। हाँ जी, जे फिर से गायब हो गए हैं। आई थिंक इनसाइड द रिंग चले गए, अंडर द रिंग चले गए हैं वो। हाँ जी, लेकिन ये है किधर कुछ अता पता नहीं है, और ये बीजे स्टॉक करते हुए मैक्सिम रिस्की को। पर मैक्सिम रिस्की अभी भी जे को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे पीछे से पकड़ते हुए। वेस्टलॉक बहुत ही शानदार टेक डाउन करते हुए। देखिए ये डबल टीम करते हुए, लेकिन कोई टैग नहीं हुआ है। इलीगल। See that? That's cheating. That's cheating. And that's on you. आरजे 2 काउंट। और ये आरजे अपनी शिकायत दर्ज करते हुए एबी मैनियक के ऊपर, क्योंकि उन्होंने टीम इवोल्यूशन को यहाँ इस मैच में एक जो है एक अपॉर्चुनिटी दी है लड़ने के लिए। एक समय था जब टीम कर्फ्यू डोमिनेट करती थी इस रिंग को, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली टीम कर्फ्यू के अंदर थोड़ी सी मतभेद मैं ये कहूँगा। थोड़ी भी नहीं है अब तो, अब ऐसा लग रहा है कि अब तो खत्म। नहीं, देखिए मेरे हिसाब खात्मे से के कागार पर आ गए। देखिए मेरे हिसाब से जंपिंग टू कंक्लूजन हमें यहाँ पर नहीं करना चाहिए। हम मीडिया नहीं है भारत की, हाँ जी, हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए आगे क्या होता है, तब जाके हम कुछ कह सकते हैं कि टीम में बिल्कुल ही बंटवारा हो चुका है कि नहीं। जी जी। स्काइलर को अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच जो आगे है उस पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देने का सोचा। बहुत। उन्होंने ये सोचा कि उनको टैग टीम चैंपियनशिप मैच जो है आज उस के अपॉर्चुनिटी के लिए है एक आज, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनको स्काइटल जिसको उन्होंने नाम दिया है उस पर उन्हें ज़्यादा जो है प्यार है, वो उसको खोना नहीं चाहते हैं। तो इस चक्कर में टीम कर्फ्यू खात्मे की कागार पर आ गई है, और अब एक लीगल टैग होते हुए इन साइको क्लाउन्स के बीच में। और ये डांस होते हुए रिंग के बीच में एंटरटेनमेंट का पूरा। हाँ जी, बॉल रूम डांसिंग रिंग में। ओह! और ये स्टिंगर स्प्लैश जनार्दन झाकड़ के द्वारा। एफर्टलेस। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मैं एक बात कहूँगा इन क्लाउन्स के बारे में कि काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी शानदार मोड ऑफ रेसलिंग और फॉर्म ऑफ रेसलिंग है इन दोनों का। हाँ जी। कैरेक्टर्स इनके थोड़े विचित्र हैं, लेकिन रेसलिंग है वो अरे पूरी पुख्ता है। पीपल्स एल्बो, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मूव इन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन एल्बो पैड्स नहीं है, क्या उतारे हैं? लेकिन कोई बात नहीं, बिना एल्बो पैड्स के ही करेंगे यहाँ पे पीपल्स एल्बो। पीपल्स एल्बो, यस, इट्स ओवर, इट्स ओवर। मैक्सिम रिस्की को कवर कीजिए, मैक्सिम रिस्की को कवर कीजिए। ये खत्म, ये मैच खत्म। आरजे कुछ नहीं, स्काइलर भी कुछ नहीं, और 1 2 और ये ओहो, सिर्फ 2 शायद और अच्छे से कवर किया होता तो ये मैच खत्म हो गया होता। और ये नीज पर मुझे लगता है यहाँ पे अगर एबी मैनियक थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेते, थोड़ी अपनी हेटेड नहीं, ओहो! लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा और ये 5 नकल शफल। है जी? ये तो ऐसा लग रहा है पैरेडी बन You रही है यहाँ can पे। see me, मैक्सिम रिस्की। और ये बहुत ही शानदार काउंटर करते हुए उस आदमी की मूव जिसको कोई नहीं देख सकता। बहुत ही शानदार मैक्सिम रिस्की। लेकिन
तो जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे अभिषेक जी, अगर एबी मेनियक थोड़ा यहाँ पे सूझबूझ से काम लेते, अपनी खुंदक नहीं निकालते टीम कर्फ्यू के ऊपर, तो शायद आज यहाँ पे हमें 2-on-2 टैग मैच देखने को मिलता, ना कि 1-on-2 हैंडीकैप मैच। बहुत ही नाइंसाफी हो रही है मैक्सिम रिस्की के साथ, मैं कहूँगा यहाँ पे मैक्सिम रिस्की के खिलाफ। लेकिन आप वो देखिए एबी मेनियक ने क्यों ये चीज़ की। उन्होंने ये उस वार्तालाप में ये कहा, स्काइलर ने ग्राउंड ज़ीरो के बाद जो एक टेप भेजी थी रेसल स्क्वायर के पास, उसमें उन्होंने ये एक परमानेंट इंजरी देने की एक थ्रेटन किया था एबी मेनियक के ऊपर, अगर उन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने ये कहा, You maniac, and I'm coming for you. देखिए आज तक मास्टर ब्लेम कर रहे हैं एबी मेनियक को, आप सफाई दे रहे हैं एबी मेनियक की तरफ से। अभिषेक जी, मैं आपका प्यार समझता हूँ उनकी तरफ, लेकिन आज तक रिंग मास्टर है वो ब्लेम कर रहे हो। मेरे भी हिसाब से एबी मेनियक को थोड़ा सा यहाँ पे प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि पर्सनल। चलिए कोई बात नहीं, एनीवेज हाँ जी इट्स पार्ट एंड पार्सल। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी में मैं यहाँ पे एक बार कहना चाहूँगा, मुझे लगा था आज लेग ड्रॉप और ये पैरोडी करते हुए मैक्सिम रिस्की की कवर। इट्स ओवर, इट्स ओवर। सिर्फ 2। जैसे कि यहाँ पे मैं कह रहा था कि मैक्सिम रिस्की ने काफ़ी टाइम से रेसल नहीं किया है, तो रिंग रस्ट हाँ मुझे जी। लगा था देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक एज सच इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। हाँ जी, काफी- लेकिन अभी भी वो डोमिनेट हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कुछ इफेक्ट है रिंग रस्ट का। और That was creepy. थोड़ा सा दूर रहे कैमरे से। काफ़ी क्रीपी था वो। हाँ जी, और हमने पिछली बार जब मैक्सिम रिस्की को देखा था ग्राउंड जीरो में, वो रेफरी का काम कर रहे थे, क्योंकि वो तंग आ गए थे लॉकडाउन से। राइट द चिन। हाँ जी, एक सुपर किक। और अटैक होते हुए रिंग के अंदर आते हुए, ये जेजे है या बीजे है? ये बीजे हैं, ये बीजे है। ये बीजे हैं। चलिए सिर्फ ओह, बहुत ही शानदार कवर देख रहे हैं हम, क्रॉच से कर रहे हैं जी। मतलब क्या बोला जाए चीज़ को लेके, बहुत ही इनोवेटिव कह सकते हैं, बहुत अलग कह सकते हैं। वो मैं कह रहा हूँ काफ़ी विचित्र है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये दोनों यहाँ पर। इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, इनके नाम नहीं पता, हमने हाँ ऐसे जी। इनके नाम रख दिए हैं सिर्फ यहाँ पर। हाँ जी, और ये एबी मेनियक ने इनको कहा कि ये टीम इवोल्यूशन है, यानी और कि ये बॉलरूम डांसिंग होते हैं फिर से। This is disgusting. This is a disrespect. मैं यहाँ पे आज रिंग मास्टर से थोड़ा सा एग्री करूँगा अभिषेक जी, डिस्कसिंग तो है, हाँ जी, काफ़ी क्रीपी भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग। रिंग मास्टर को थोड़ा दूर रहना चाहिए, वो रेसलर नहीं है। मैक्सिम रिस्की की आपने कभी इतनी बुरी हालत देखी है? नहीं, मैं सच बताऊं, मेरे को यहाँ पे स्काइलर की जो कमी है वो काफ़ी खल रही है यहाँ पे। अगर स्काइलर यहाँ पर होते तो शायद मैक्सिम रिस्की की ये हालत नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्काइलर एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे रहना चाहते हैं, हाँ जी, और टैग टीम में थोड़ा भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है। वो अपने स्काइटल से ज़्यादा प्यार रखते हैं, ना कि मैक्सिम रिस्की से। ये अब प्रतीत हो मैं तो रहा कह ही है। रहा हूँ, इनको एक नया पार्टनर चूज कर लेना चाहिए अब। हाँ जी, देखते हैं आगे क्या होता है। ओह, मैक्सिम रिस्की शोइंग अस सम लाइट, मैक्सिम रिस्की। हाँ जी, कुछ दिखता हुआ। क्या ये वापस आ पाते हैं? ओह, एटॉमिक ड्रॉप, ओह, सुपर किक, और एक क्लाउन बाहर जाते हुए, और आरजे भी उनको खटी घोड़ी सुनाते हुए। ओह, और ये सिटिंग स्पाइन बस्टर। तो यहाँ पे एडवांटेज आ जाती है साइकोटिक क्लाउन्स इवोल्यूशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर 2-on-1 है, तो अगर एक जन को पिनफॉल होता है तो दूसरा आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन मैक्सिम रिस्की के पास ऐसी कोई भी एडवांटेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्काइलर का धोखा यहाँ पर बहुत भारी पड़ रहा है मैक्सिम रिस्की के लिए, लेकिन वो जो उनका डिसीजन था वो खुद के लिए था। कितना अच्छा कितना बुरा ये लोगों पर है, उनकी क्या ओपिनियन रहती है इसके मामले में। और ये आसानी से पिक कर लिया मैक्सिम रिस्की को। हाँ जी, ओह माय गॉड, दिस इज ओवर। What? 1 2 3, oh! How
मैक्सिम रिस्की ने इसके बाद कैसे शोल्डर ऊपर किया, मैं मेरे समझ के बाहर है। जी मेरी भी समझ से बाहर ही है ये। मेरे को लग रहा है जो जज्बा है मैक्सिम रिस्की का, क्योंकि काफ़ी टाइम बाहर रिंग के अंदर आए हैं, तो एक जो भूख होती है, एक प्यास होती है रिंग के अंदर लड़ने की, वो जज्बा उनको यहाँ पे बनाए रख रहा है इस रिंग के अंदर। हाँ जी, और ओहो डीडीटी टेक्स्ट बुक। हाँ जी, और ये देखिए जो सर पर और गले पर जो पूरा इम्पैक्ट पड़ा है, उस दर्द से कर्राते हुए मैक्सिम रिस्की। आई थिंक रेफरी को यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल लेना चाहिए मैच का। ऐसा नहीं होता है कि आप दोनों रेसलर्स नहीं हो सकते इस टाइम पे। रेफरी खुद डरे हुए हैं साहब। रेफरी क्या करें कि ये लोग क्या कर सकते हैं। मैच की शुरुआत में हमने देखा नहीं था, रेफरी को पिन कर दिया था इन्होंने। हाँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वैसे। अब ये क्या कर देंगे, अब ये एक और डबल टीम मैनूवर के लिए जा रहे हैं। ये हुआ यहाँ पे। आई थिंक इट्स ऑल ओवर। इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर। मैक्सिम रिस्की बहुत ही शानदार तरीके से मैक्सिम रिस्की इस मैच के अंदर अपनी वापसी करते हुए, हाँ जी, दोनों क्लाउन्स पे कंट्रोल बनाते हुए। आई थिंक जिस क्लाउन को मैक्सिम रिस्की ने बाहर धकेला है वो लीगल पर्सन थे, और जो अंदर है वो अभी लीगल पर्सन नहीं, वो नहीं है मेरे ख्याल से लीगल पर्सन। जो बाहर गए वो लीगल पर्सन है। हाँ जी, और अभी वापस आते हुए, लेकिन मैक्सिम रिस्की ही हैज हिज आईज ऑन द बैक ऑफ हिज हेड। वो उसका बिल्कुल 1 2 मैक्सिम रिस्की अपनी हरकतों से बाज न आते हुए, लेकिन इस मैच में जीतते हुए, जैसे को तैसा मिलते हुए, जोकर्स का मजाक उड़ा दिया यहाँ पे। हाँ जी भाई, मैक्सिम रिस्की वॉकी फिनिश तो काफी बुरा लग रहा होगा यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे मैक्सिम रिस्की, जी हाँ अभिषेक जी, मैं आपकी खुशी का ठिकाना मैं समझ नहीं रहा है, यहाँ पे काफी खुश है। और ये इवोल्यूशन बिल्कुल भी इस हार को अपने नाम के साथ ना, मतलब पूरा ये लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ हम हैं इविल और हम हैं इवोल्यूशन। हाँ जी, ये अपनी हार को बिल्कुल ना जायज़ ये डाइजेस्ट करते हुए, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे अपनी हार को, और जायज़ तरीके से अपने नाम को यहाँ पे सिद्ध करते हुए। हाँ जी, इवोल्यूशन, बीजे और जेजे इनके टेंटेटिव नेम्स। आरजे कहते हुए खत्म हो चुका है, खत्म कीजिए, लेकिन स्टॉप से सीधा इनकी रिब्स पे मैक्सिम रिस्की यहाँ पे दर्द के न कराते हुए, लेकिन जो इवोल्यूशन वो एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंटम को। बिल्कुल इनका, ओ कम ऑन, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और ये इनका पहला, आप कह सकते हैं ना, पहला अपीयरेंस, और ये पूरा अपना स्टेटमेंट देकर जाना चाहते हैं। और ये सबसे बड़े फैक्शन के खिलाफ आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं रेसल स्क्वायर के रेल्म में। मैक्सिम रिस्की बहुत ही, मैं स्मार्ट मूव कहूँगा इस चीज़ को यहाँ पर। मैक्सिम रिस्की दिमाग लगाते हुए अपना और बाहर निकलते हुए फ्रॉम द हार्म्स वे, एंड यहाँ पे मैक्सिम रिस्की फाइट अनदर डे। हाँ जी बिल्कुल, फाइट अनदर डे। जब आपके पास बिल्कुल पूरे मेंबर्स होंगे, आपके साथ जो हैं सारे मेंबर्स होंगे, 2 on 2 होगा, तब आगे आप लड़ेंगे। जी हाँ, तो इसी के साथ अंत होता है हमारे पहले एपिसोड का। हम मिलेंगे आपसे आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर, और हमें पता लगेगा इवोल्यूशन के बारे में होपफुली, एंड हम देखेंगे और एक्शन इन रेसल स्क्वायर एक्सप्लोजन।